Next, come to the another type of topology known as tree topology. तो जो ट्री टोपोलॉजी है, इट इज वेरिएशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी के कुछ ड्रॉबैक को ही आगे वेरिएट कर दिया गया है with the help of tree topology, in which the hierarchical nature, like a tree, the hierarchical parent-child relationship is maintained and applied during the network establishment. Very important topology है ये. Tree topology is a variation of star topology. As in star nodes in a tree are linked to a central hub that control the traffic to the network. However, not every device plugs directly to the central hub. Like in star topology, all nodes are connected with a central point like hub. But in that configuration, tree topology, not every device plug directly into the central hub. The majority device connect to a secondary hub that in turn connected to the central hub. For example, एक डायग्राम बनाते हैं. This is hub and two workstations WS1 and WS2 are connected. Then this hub contains या connected with another hub. और इसके बाद इन सब हब से अलग अलग वर्क स्टेशन आपके कनेक्ट हैं. WS3, WS4, WS5, टू वर्क स्टेशन यहां से कनेक्ट है. 6, 7, suppose two workstation is also connected from this hub. You can also number, suppose this is hub 1, 2, 3 and 4. So this hub contains workstation 1 and 2 with the continuously hub 1 connected with hub 2, hub 1 also connected with hub 3, hub 1 connected with hub 4, and these are further connected workstation 3, 4, 5, these workstation with this hub, and workstation 8 and 9 connected with hub 4. If we want to send any data from WS3 workstation 3 to the workstation 1, then it requests to the hub 2, hub 2 requests with hub 1, and then the data will be sent to workstation 1 and vice versa. So the load can be divided or subdivided in hierarchical manner. ठीक. फॉर एग्जाम्पल अ गुड, आप एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे टेबल, आपका जो टीवी कनेक्शन है, केबल कनेक्शन है, उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो इसी तरह से जो आपका ट्री टोपोलॉजी उसी ऑर्डर में इसका आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें कि मेन केबल या मेन जो है जो केबल होती है वो सेंट्रल ऑफिस में बनी होती है एंड डिवाइडेड इन मेन ब्रांचेस विद ईच ब्रांच डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस and so on. These hubs are used when a cable is divided. Advantages देख लीजिए क्या है इसके. First, the distance to which a signal can travel increase as the signal passes through chain of hubs.
Second one, it also allows, means tree topology allows isolating and prioritizing communication from different nodes. ये फीचर्स अभी तक के जो हम लोगों ने 3 टोपोलॉजी पढ़ी है उसमें नहीं है. मीन्स किसी भी पर्टिकुलर नोड को, वर्क स्टेशन को आप आइसोलेट कर सकते हैं या साथ ही साथ किसी को आप प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं. मीन्स स्पीड, इन द टर्म्स ऑफ स्पीड, सिग्नल बैंडविड्थ यू कैन इंक्रीज or decrease with this arrangement. Third, quality of services is very high in the tree topology. Disadvantages और limitations थोड़ी सी हैं. मीन सेम जो आपका बस टोपोलॉजी में होता है या स्टार टोपोलॉजी में भी होता है. इफ बैकबोन लाइन ब्रेक्स द एंटायर सेगमेंट गोज डाउन. लिख देते हैं, इफ द बैकबोन मीन सेंट्रल हब इज फेल्ड, एंटायर नेटवर्क विल बी shut down. Breaks the entire segment goes down. Second, it is more difficult to configure the wire than other topology. ठीक है, configure the wire than other topology. Last and important topology is mesh topology. क्या इसको कह सकते हैं? फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी. Also fully connected topology means every node is connected with every node, every workstation of the entire network establishment. The mesh topology has direct connection between every pair of devices in the network. आप एक एग्जाम्पल से देख लीजिए. This is workstation 1, workstation 2, workstation 3, workstation 4 एंड वर्कस्टेशन 5. वर्कस्टेशन नोड्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम है आपके. ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम है, प्रिंटर है, मशीन आपने लगा के रखा है, फैक्स मशीन लगा है. ठीक है, फाइल सर्वर लगा के रखा हुआ है, कुछ भी हो. सो every node is connected. ये वाला WS2 से हो गया, WS1 है, 4 से हो गया, 5 से हो गया एंड 3 से हो गया. WS2 1 से, 4 से, 5 से एंड 3 से भी हो गया. एक WS3 1 से हो गया, 2 से भी हो गया कनेक्शन इसका, 3 से भी हो गया और 4 से भी कनेक्शन हो गया. WS5 का कनेक्शन 1 से हो गया, 3 से कनेक्शन हो गया, 2 से कनेक्शन हो गया, 4 से भी कनेक्शन हो गया. 4 का 2 से कनेक्शन हो गया, 1 से कनेक्शन हो गया, 3 से कनेक्शन हो गया एंड 5 से कनेक्शन हो गया. मीन्स every workstation is connected each workstation. ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है टोपोलॉजी और सबसे एक्सपेंसिव भी है. साथ ही साथ इसमें जो ड्रॉबैक्स भी कम से कम है. एडवांटेजेस आप देख लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, द यूज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिंक
eliminate network congestion. Congestion means traffic. Congestion is टेक्निकल टर्म यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग. अभी बहुत बार आप सुनेंगे ट्रैफिक कंट्रोल. जब कहते हैं ट्रैफिक की बात करते हैं तो वो कंजेशन कंट्रोल ही होता है. कंजेशन इज टेक्निकल टर्म यूज्ड इन नेटवर्किंग. तो इन मेश टोपोलॉजी कंजेशन काफी कम होता है, काफी रिड्यूस होता है. इफ वन आपका कोई भी लिंक जो है अगर unusable है, it does not disable the entire system. If one link becomes unusable, it does not disable the entire network. डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप फेयरली एग्जामिन करें और एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो बस टोपोलॉजी के अलावा बाकी सब टोपोलॉजी में एडवांटेजेस ही हैं, लेकिन बाकी सबके कुछ लिमिटेशंस हैं. ठीक है. और सबसे ऑप्टिमम और सबसे जो यूजफुल है वो मेश टोपोलॉजी ही होती है, लेकिन इसमें केबल बहुत ज्यादा लगता है और एक्सपेंसिव हो जाता है. फर्स्ट जो हम अभी लिखने वाले भी हैं, द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड केबलिंग इज वेरी लार्ज. सेकेंड, as every node is connected to other node, so installation and reconfiguration is very difficult. It is obvious disadvantage, but this is not disadvantage, this is the limitations. अगर आप हर नोड को हर नोड से कनेक्ट करेंगे, डेफिनेटली वायर भी ज्यादा लगेगा और साथ ही साथ कॉस्टिंग भी हो जाएगी. और मे बी इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू मैनेज द ईच एंड एवरी कनेक्शन. थर्ड वन इज एक्सपेंसिव. इसी तरह से ये एक्सपेंसिव भी आपका हो जाएगा. सो दीज आर ऑल अबाउट टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी की किस तरह से नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या नेटवर्क आर्किटेक्चर में नेटवर्क का एस्टेब्लिशमेंट, नेटवर्क का अरेंजमेंट किस तरह से होता है. इसमें किसी को कोई भी टोपोलॉजी ना समझ में आए, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो तुरंत पूछ लीजिए. नाम लेके बुलाएं क्या भाई? सबको सब समझ में आ रहा है? रितिका, हाँ समझ में आ रहा है सब? नोट डाउन किया है? किया है. सारी टोपोलॉजी समझ में आ गई? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट कम टू द ट्रांसमिशन मोड. another topic, introductory and important topic which is useful
and in terminology also used transmission mode. Means whenever the data or message sent from source to the destination, there are three types of transmissions occurs. First of all, simplex. Simplex का मतलब one way. Means the communication is unidirectional and one way. In this, communication is unidirectional and वन वे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें कॉमन और प्रैक्टिकल, जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड कनेक्ट विद सेंट्रल, आपका जो प्रोसेसिंग सिस्टम सीपीयू से कनेक्ट होता है, लेकिन कीबोर्ड का काम सिर्फ होता है इनपुट देना, यानी कीबोर्ड से ही इनपुट जाएगा, कीबोर्ड में कुछ नहीं आएगा. ठीक है. मॉनिटर, आप जो भी इनपुट देंगे मॉनिटर शो करेगा. मॉनिटर सिर्फ का काम है क्या करना है, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको सिर्फ शो करना है. मॉनिटर अपना कोई भी इनपुट रिस्पॉन्स सेंट्रल सर्वर सिस्टम को नहीं देता है, सीपीयू को नहीं देगा. ठीक है. यानी वन वे कम्युनिकेशन, यानी एक आपने सोर्स बनाया, एक डेस्टिनेशन बनाया, तो ये फिक्स है कि सोर्स से सिर्फ और सिर्फ डेटा जाएगा, डेस्टिनेशन से कभी भी सोर्स पे डेटा नहीं आएगा. सेकेंड, हाफ डुप्लेक्स. डुप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स का मतलब दोनों साइड, लेकिन ये भी दो कैटेगरी में बना होता है. वैसे तो ट्रांसमिशन मोड दो ही होते हैं, सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स, लेकिन डुप्लेक्स में भी दो मेथड्स हैं, हाफ डुप्लेक्स. इसका मतलब क्या हुआ कि ईच स्टेशन, वर्क स्टेशन अगर आप इसकी बात करें, ईच स्टेशन, या अगर हम ट्रेडिशनल बात करें आपके सोर्स एंड डेस्टिनेशन की, तो ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट और रिसीव, मीन्स कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेज बट नॉट एट सेम टाइम. ठीक है. या एक दोनों नोड का इस्टेब्लिशमेंट है, सेंडर ने रिसीवर को मैसेज सेंड कर दिया, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन के टुवर्ड्स मैसेज विल बी फ्लोट या सेंड हो गया, एंड आफ्टर दैट डेस्टिनेशन पॉइंट या रिसीवर कैन एक्नॉलेज रिस्पॉन्स या मे कैन ऑल्सो ट्रांसमिट देयर ओन डेटा या मैसेज टू द सेंडर, but not at same time. Each station can both का मतलब जो आगे प्रोसीजर है, आपका प्रोसेस है, ट्रांसमिट और रिसीव. बोथ का मतलब ये इन दोनों में, रिसीव बट नॉट एट सेम टाइम. थर्ड है फुल डुप्लेक्स. वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मोड है ये. क्वेश्चन छोटा बहुत पूछा जाता है. मीन्स बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट और रिसीव साइमल्टेनियसली. सपोज या फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन मतलब मोर देन 2 or 3 persons आर डिस्कसिंग विद इन एनी टॉपिक ऑन एनी टॉपिक. सो simultaneously they can share their thoughts and argue with each other. ठीक है. Both station can transmit or receive the message simultaneously. अंडरस्टैंड. इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, समझने में कोई प्रॉब्लम हो, सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स.
सो दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और कल जो भी हमारा लेक्चर होगा, कल का मतलब जो भी हमारा नेक्स्ट वीक में लेक्चर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप ये सब तैयार कर लीजिए। ये बेसिक्स है नेटवर्किंग का। उसमें हम लोग पढ़ेंगे OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरफ्रेंस, ओपन सिस्टम इंटरफ्रेंस रेफरेंस मॉडल, OSI रेफरेंस मॉडल, जिसपे बेस्ड पूरी नेटवर्किंग आपकी है। 7 लेयर्स होंगी और 7 लेयर्स के फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे और उसी के बेस सारे प्रोटोकॉल जितने भी हैं, जितने भी प्रोटोकॉल के आपने अभी तक नाम सुनेंगे, HTTP से लेकर के और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैक एड्रेस का नाम सुना होगा, HDLC, LLC, ये सारे प्रोटोकॉल्स इसी OSI मॉडल के अराउंड वर्क करते हैं। ठीक है, अटेंडेंस बोल दीजिएगा। इसके बाद किसकी क्लास है? क्यूट है। आंचल गुप्ता, देखिए हर क्लास का एक रजिस्टर या नोट बना लीजिए, डेट वाइज काम नोट करते रहिए। नेक्स्ट वीक से सरप्राइज टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभिनव, अभिषेक, आकांक्षा, आकृति, अमन राज, अनमोल, अंश रस्तोगी, अंशुमान, अनुषा, आप सभी लोग के पास सिस्टम है। गूगल क्लासरूम पे जितने भी मैं नोट्स शेयर कर रहा हूं, उनका वीडियो और साथ ही साथ नोट्स जो PDF फॉर्म में है, उनका एक फोल्डर बना लीजिए। नोट्स नाम से अलग फोल्डर बना लीजिए, वीडियो लेक्चर अलग नाम से, और सबको देख करके डाउनलोड भी करते चलिए। चाहे तो जिप फॉर्म में भी रखिए, लेकिन नोट्स आपके पास होने चाहिए। अरुणोदय सिंह, आर्यन, आशीष दुबे, अस्मिता, आशीष दुबे एब्सेंट, आशीष दुबे एब्सेंट है। अस्मिता हो गया। अवंतिका, आपने वीडियो लेक्चर देखा था, कल आप एब्सेंट थी। हाँ, दो दिन एब्सेंट थी, दोनों लेक्चर मैंने डाउनलोड उसमें अपलोड किए हैं। आयुष, आयुषी, डिम्पल, हर्षित, कृतिका, हमजा, जिनकी अटेंडेंस हो गई है कैन लेफ्ट आल्सो, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अगली क्लास भी है तो अपना पानी नहीं पी लीजिए। काजल गुप्ता, काजल वर्मा, कार्तिक, कौशिकी यादव, कोशिका, बेटा अपने नाम से ही ज्वाइन किया करो, है ना। कोशिका, अपने नाम से ही ज्वाइन किया करो। कोई रेखा महाजन के नाम से था। मेन रीजन ये है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन ये है कि ये रिकॉर्डेड है, तो जब आप ज्वाइन करते हैं मैसेज आता है, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, समझ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, ठीक है। मांडवी, मोहम्मद आफ्ताब,
मुस्कान, नम्रा, नितिन, पल्लवी, प्रज्ञा, प्रखर वाजपेयी, प्रखर तिवारी, प्रसून, ऋतिक, रूमी यादव, साक्षी, सत्यार्थ, सौम्या वर्मा, शैलेंद्र। भैया बोला करो, जब नाम बुला रहे तो बोल रहे नहीं हो, हैं? शैलेंद्र, हाँ, नोट्स वगैरह सब बना रहे हो? नहीं, अब 2 लेक्चर हमने वीडियो पुराने वाले उसमें अपलोड किए हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए। हाँ ठीक है, देखते रहो। शशांक, शिवांश, शोभित गुप्ता, श्रेयांश, शुभांगी, सिद्धांत, सिद्धार्थ, सुधांशु, सूरज चौबे, सूरज पांडे, स्वर्णिम, तान्या, यशी, युवराज, युवराज पांडे,